Good morning, students. So our next chapter is principles of management. Today we will going to start the topic, and the new topic is meaning and definition of principles of management. As you all know that every subject has their own principles, rules and regulations. Here also management has its own principles. The principles of management act as a guide for the practice of management. These principles are helpful in predicting and understanding the results of managerial actions. Principles of management are of universal in nature and apply to every type of organization. Management principles are not rigid. It deals with the human behavior. They are flexible and technical in nature. Management principles insist on fulfilling social and ethical responsibilities of the society. These principles are derived on the basis of observation and analysis or experimental studies. The principles of management are both descriptive and prescriptive. देखिए, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और लॉज होते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो रहते हैं वो गाइड की तरह एक्ट करते हैं। आप मैनेजर जो भी है, या अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर है और किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, तो आप अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू आप इजीली जज करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ज़रिए अपने रिजल्ट्स को ईज़िली समझ सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कभी भी रिजिड नहीं होते, मतलब कठोर नहीं होते हैं। वो ह्यूमन बिहेवियर से भी डील करते हैं, और जैसे जैसे बिज़नेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से ढलते जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, और हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ईज़िली ये फिट हो जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, या फ्रांस में करें, या इटली में करें, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे, आप इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए अलग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं, फ्रांस के लिए अलग बने हैं, इटली के लिए अलग बने हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मतलब आप ग्लोबल किसी भी देश की अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आप इन्हें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ हैपनिंग्स of the past and observation of facts. The first point is universality. The principle of management are universal in nature. That means that can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature. The results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. Second point is relativity. Management principles are not static or absolute in nature. They have to be applied keeping in view the prevailing situations. Next point is flexibility. Management deals with the diverse problems and situation. According to Henry Fayol, principles of management are flexible and not absolute, must be utilized in the light of changing conditions. Management principle cannot be applied as it is in all situations. These are suitably mended and modified as per situation. Next point is dynamic nature of principle. The principles of management are flexible and dynamic. Management is a social science having no hard and fast rules. This principle of management change with the changing environment. Last point is relative principles of management. The principle of management are relative and not absolute. These should be applied according to needs, place, time, culture, etc. देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो रहते हैं वो डेवलप किए जाते हैं लाइव एक्सपीरियंस के साथ, ऑब्जर्वेशन और जो फैक्ट वगैरह जो कलेक्ट किए जाते हैं उसके बाद ही किसी भी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल का डेरिवेशन होता है। हमारा जो टॉपिक है नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसमें पहला पॉइंट था
यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो या हर टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मॉडिफाई करके और अप्लाई कर दिए जाते हैं। फर्म टू फर्म रिजल्ट्स वेरी करते हैं, कुछ फर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ फर्म में कुछ कम अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट था रिलेटिविटी। इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे जो सिचुएशंस रहती है वो बार बार बदलती रहती हैं। उसी तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईजिली चेंज होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है, तो किसी भी कंपनी की जो पेमेंट कैपेसिटी रहती है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क करने पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वर्क बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा वो उतना ही अच्छा पेमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कर पाएगी। जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन त्योहारों पे एम्प्लॉयज़ को बोनस भी देती है, तो अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा काम है तो वो इजीली अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे पाएगी। पर मान लीजिए कि अगर कंपनी के पास काम कम है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं बांट पाएगी, सिर्फ सैलरी ही दे पाएगी। थर्ड पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी सरल पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रहते हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, मतलब लचीले होते हैं। जैसे पानी का स्वभाव कैसा होता है, आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे कटोरी के शेप का हो जाएगा। उसी तरह से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो रहते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के साथ ईजिली डील कर लेते हैं। वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। बदलती हुई कंडीशंस के साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। देखिए, प्रिंसिपल का नेचर तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लेक्सिबल भी होता है और वो डायनामिक भी होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी हार्ड और फास्ट रूल नहीं होता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। जैसे जैसे सिचुएशन और वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसी हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते जाते हैं। लास्ट पॉइंट था रिलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिलेटिव होते हैं और एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। वो आपकी नीड्स, प्लेस, टाइम और कल्चर को देखते हुए ही अप्लाई किए जाते हैं। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है उस हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं, और किस जगह पे आपका ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है, आपको कितने समय में काम करके देना है, जिस कंट्री में आप काम करते हैं उस कंट्री का कल्चर कैसा है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं और उसके बाद ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई करके और अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बस इतना ही। होप आप लोगों को समझ में आएंगे, और अगर कुछ डाउट लगे तो आप लोग मुझे मैसेज करके वो डाउट्स सॉल्व करवा लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।